Okay, great. So, hi, my name is Gorak, founder GS Developers Club. So, we are here today to attend a workshop on Python, that is Introduction to Python. So, basically, the idea behind uh, GS Developers Club is to bring developers forward and just improve their skills, uh, just expand the skills what they have. And the main motto of a club is basically, if you don't have enough talent, that's okay, but you should be passionate about the thing that you want. So main motto, main thing we consider at GSC Developers Club is the passion you should have about some things. Okay, so whether if you have a passion about a particular thing, then you can achieve it for sure. And if you have a talent but you don't have passion about that one, so I don't think anyone can pursue the goals that they are tend to achieve. Okay, so basically, when I was a child, I was really fascinated by how website works, how internet works. So because uh, everything that you get on the internet is just a click away. So everything that is being rendered on the screen is very fascinated. And uh, don't you wonder how the websites work, how they are 24 hours live, how the things that are being rendered on the internet uh, are changing the world, because all the things during this lockdown period is the most uh, particular thing that you are viewing, or that you are pursuing, is the online education. That all the things are possible due to these web apps, or other ways, or this technology that is related to this one. Okay, so today we are going to talk about what we do as a developer at GSS Developers Club. Okay, so our mission is about realizing the full potential of the internet, universal access to research and education, full participation in culture to derive a new era of development, growth, and productivity. Uh, this thing means that the every developer which is eager to put a step into the development phase, or every person who is aiming to be a developer, or a software engineer, so to pursue, to direct him to a right path, and to help him pursue his dreams. And our GSS Developers Club is now a registered startup. So we provide a SaaS uh, functionality, that is software as a service. Okay, so we at GSS Developers Club mainly work in MERN technology, that is uh, MongoDB, Express, React, and Node.js. Okay, so the famous uh, Scott Bessey, Behance co-founder, has said that it's not about ideas, it's about making ideas happen, because everyone comes with an idea every set. Okay, so everyone is getting an idea, and all are just thinking about that idea, and that they are just living at that point. But that's not the case. When you work on those ideas, and when you actually try to pursue those ideas, that's when the real success comes out, and that is where the value of that idea is being executed. Okay, so basically we work in React.js, that is a framework, JavaScript framework for front end. And then we work with Express.js routing models, and then we work with Node.js, and the famous database, that is MongoDB. And we are not restricted to this thing, but we are particular about these our technologies that we work on. So at GSS Developers Club, we not only take the peoples who are passionate. If at all you don't know anything, that's all right for us. But
the basic thing that we need is the passion in you. So uh, through this workshop, we'll be having a contest, that is two or three contests we will be conducting, and through these contests, I'll be testing your passion about problem solving. Uh, Again, the problems that you are solving, are they that eligible? And one thing I'll just tell you over here is, we are not looking at a real talent. If you are not able to solve, it's okay. It's okay. But the main thing that I expect from you is that you try to solve that thing. If you are not able to try, just reach out to us, and we'll help you out. Okay, so that eagerness, that willingness to learn is most important to us. And as you have seen, Vikas is there, Harshad is there, Rohit is there. These three candidates are from previous developers hunt. It was in 2020 when we conducted developers hunt last year. So they are the students from developer hunt 2020, and you can just see their progress. You can see their resumes. You can see their GitHub profiles. How much they have expanded exponentially in a year. So that if you want to join us, so be with us and just show that passion towards learning to us, and you will be there on our side. Okay, so that's all. That was the thing I wanted to convey to you. So over to you, Vikas, now. Just okay. Am I audible, Vikas? Just please check. Okay. So, good morning, everyone. Uh, First of all, I welcome you all for this Python Kickstart session with GRCS Developers Club and myself, Harshit Joshi. And first of all, I want to clear that two things for these session that are going to be held for the next 3 days. So first thing is that please make sure that the session remains इंटरेक्टिव. मतलब जब भी आपको कोई भी डाउट आए तो क्वेश्चन तुरंत पूछ लो, और मतलब अनम्यूट करो और पूछ लो. मतलब किसी को भी कुछ भी नहीं सोचना है. यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा मतलब लेक्चर या सेशन नहीं चल रहा है, तो आपको जस्ट डाउट आया तुरंत पूछ लो. फर्स्ट थिंग ये. दूसरी चीज क्या है कि मतलब आपको भी पता है कि 3 दिन में कोई भी मास्टर नहीं बन सकता. तो अगर किसी मतलब अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है, लाइक मैथ्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. Okay, so I will be just giving a brief idea that we are taking these 3 sessions as. First of all, I will cover some basics about Python in first today's lecture. Then we clear some data structures about Python, and thereafter the third lecture is given by Rohit. So in that you will be given some advanced features of Python. Okay, so our today's agenda will be, first of all, I introduce you to the Python language. Thereafter, we will install the Python language into our system, and then we see some basic data types. After that, we will see the arithmetic operations, then variables in Python, then strings. Okay, uh, and so let's start with our introduction to Python language. So Python is a high-level interpreted language which is easy syntax and easier to learn for beginners. तो मेरे को कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने यूज किया है हाई लेवल, इसका मतलब क्या है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, एंड प्लीज टॉक विथ मी, ताकि मेरे को भी ऐसे फील ना हो कि मतलब सेशन इंटरेक्टिव नहीं हो रहा, मतलब बोर ना हो रहा हो. तो उस वजह से जिस मतलब
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताने वाला हूँ। ओके, सो और क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट आए तो तुरंत पूछो। सो आई एम आस्किंग जस्ट दैट if someone know about the meaning of high level programming languages. Is anyone from first year? I am expecting. Okay, so basically what is meaning of high level language is that uh, uh, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे समझ लो कि चाइनीज है, तो अभी मेरे सामने अगर कोई चाइनीज लिख देगा तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा, बट चाइनीज का मोटो है किसके लिए, चाइना वालों के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसको ऐसे सोच के बनाया जाता है कि वो सबको समझ में आए, है ना। और सबको समझ में आने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे फ्रेजेस होने चाहिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कि मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन जो लैंग्वेज में बात कर रहा है वो सब होना चाहिए। तो बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या, इंग्लिश। तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर फ्रेजेस एंड वर्ड्स जो यूज होते हैं, जो सिंटेक्स उसका बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें इंग्लिश का कुछ ना कुछ पार्ट यूज हो रहा हो। जैसे पाइथन के अंदर इज यूज होता है, इन यूज होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप। और पाइथन का जो सिंटेक्स है वो तो इतना ईजी है कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं इंग्लिश ही लिख रहा हूँ। तो बेसिकली जब भी कोई डेवलपर कोड करेगा तो उसको आइडिया रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इससे क्या होने वाला है। तो ये तो हुआ हाई लेवल का मतलब। अब दूसरा कीवर्ड है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। तो मेरे को कोई बता सकता है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? कोई भी, एनी वन ऑफ यू, किसी को भी पता है कि मतलब इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? प्लीज इंटरेक्ट विथ मी। तो इफ एनीवन। हाँ हर्षद, एक मिनट। अगर लिसन गाइस, अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन है। ठीक है, तो आप जैसे ही हर्षद इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये कोई अटेंडेंस नहीं है और ये कोई राइट और रॉन्ग का ये नहीं है कि आपको आंसर को बताना ही है, आपको करेक्ट ही आंसर बताना है। जस्ट कुछ आइडिया है शेयर करो, अगर कुछ नहीं आइडिया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करो जिससे कि हर्षद को भी पता चले कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ठीक है, उस हिसाब से वो डेप्थ में आपको पढ़ाएगा उस चीज का, तो आप इस 3 दिन के वर्कशॉप का फुल यूज ले पाओगे। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ही ये हो जाएगा कि यार बस किया किया करने के लिए किया मतलब था। कॉलेज का लेक्चर नहीं चल रहा है यहाँ पे, मतलब कॉलेज के जैसे लेक्चर्स नहीं लेने अपन को सेशन लेना है और उसमें तुम्हें कुछ सिखाना है। मतलब तुम यहाँ पे 3 दिन के बाद जब जाओ तो तुम किसी को बता सको कि हाँ मेरे को भाई इतना इतना तो आता है पाइथन में, मैं सीख के आया हूँ। हाँ, तो और वो वाली चीज होनी चाहिए। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पाइथन पढ़ा दे, हमारा ये चीज नहीं है। हमें हमें बस आपको ये इंट्रोड्यूस कराना है कि हाँ पाइथन अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको अगर पाइथन में जाना है तो आप उसको कंफर्टेबल हो, जैसे कि उसका सिंटैक्स हो गया, उसका बेसिक वर्किंग हो गया, उसका जैसे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बस इतना भी आपको पता चल गया तो आप बाकी का सब कुछ अपने खुद से भी पढ़ लोगे। बट आवर मेन मोटिव इज टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन। ठीक है, तो इस हर्षद के साथ इंटरेक्ट करते रहो एंड यस, गो ऑन हर्षद। ओके, सो इंटरप्रिटेड बेसिकली देखो दो तरीके की लैंग्वेज होती है, मतलब एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस होती है और एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रिटेड लैंग्वेज में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है और उनका प्रोसेस क्या होता है, फिर इंटरप्रिटेड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो VS कोड में CPP का कोड लिखा है। अब एक बार कोड के बारे में मत सोचो क्या है जो भी है, मैं आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब कि इंटरप्रिटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो CPP की फाइल है इसको मैं एक कंपाइलर जो कि यूज होता है मिंजी डब्ल्यू से आ रहा है, वो G++ करके कंपाइलर होता है जो कि C++ लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो प्रोसेस होगा उसको अपन कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कि G++ एंड तो एक फाइल जनरेट होगी। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपाइलेशन क्या होता है,
अब जैसे ये फाइल जनरेट हुई है a.exe, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये देखो, मतलब इसने सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का क्या बना, मतलब कितना सारा लिखा है मशीन कोड। ये सारा मशीन कोड है जो कि अपन को किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए वो मैं जो बोल रहा था हाई लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों बनानी पड़ती है, वो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि ये वाली चीज अपन को कभी समझ में नहीं आएगी। अपन हेलो वर्ल्ड को ऐसे थोड़ी लिखना चाहते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस मैंने किया यहाँ पे, ये क्या है, कंपाइलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये कंपाइल हुआ। अब है ना, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब अब इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है सी प्लस प्लस में, बस एक जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन हुआ। तो अब जो ये फाइल है मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने ऊपर वाली फाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने ये मशीन कोड को बस रन किया। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ठीक है, तो ये होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सी प्लस प्लस होगी, सी होगी, सी हैश होगी, जावा होगी। ठीक है, ये सारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है। इनके अंदर इनका खुद का कंपाइलर यूज होता है जो कि इन लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है। फिर उसके बाद में अब आई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज या स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, मतलब इनको अपन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या होगा कि ना, आपने कोड लिखा, लाइन बाय लाइन उसको उसी टाइम रीड करेगा, चीज है जो पाइथन को, जो अगर आपने कभी सुना होगा कि पाइथन स्लो है, तो पाइथन वो जो स्लो वाला जो चीज है ना, वो यहाँ से आता है कि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा स्लो है। बाकी पाइथन को इस तरीके से डेवलप किया गया है ना कि है ना, आपको कभी फील नहीं होगा कि पाइथन स्लो है। बट ऐसे बोलते हैं कि पाइथन स्लो है, जब मतलब कभी भी आप है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करोगे तब आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि पाइथन थोड़ी स्लो है, इसलिए मतलब सी प्लस प्लस में कोड करो। तो बेसिकली ये आइडिया है बिहाइंड द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। और इसमें एक एक प्रॉब्लम और है, आपको अगर मतलब थोड़ा दिखा होगा तो, कि कंपाइलेशन पहले हुआ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, तो मेरे को कोई एरर आएगा ना, तो मेरे को पहले ही पता चल जाएगा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में। पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में रन टाइम पे मुझे पता चलेगा कि एरर क्या आया। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद में पाइथन का इजी सिंटैक्स है। अब इजी सिंटैक्स का मतलब क्या है, देखो जैसे है ना, अभी सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, जावा ले लो, सब ले लो, मतलब उन सब में सेम ही चीज है कि मतलब ब्रेसेस होते हैं, मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन को अपन को रन करना पड़ता है। ऊपर से कुछ फाइल्स अपन को इंक्लूड करनी पड़ती है, लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में एक कोड रन होता है। ठीक है, पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं, सीधा कोड लिखो और रन करो, और कुछ नहीं करना, मतलब कोड एंड रन, जस्ट रन। और दूसरी चीज है जो डिफरेंट बनाती है पाइथन को अदर देन दीज लैंग्वेजेस, ब्रेसेस। जो ब्रेसेस अपन इनमें यूज करते हैं, सी प्लस प्लस, सी एस जो भी है, उन सब में अपन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज करते हैं ताकि जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो थोड़ा डिफरेंट दिखे, मतलब अलग अलग दिखे, पता चले कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में इजियर टू लर्न होती है, मतलब बहुत ईजी है, अभी आप देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रसम, ये सब थ्योरी का पार्ट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद में है कि पाइथन अपन क्यों लर्न कर रहे हैं 2021 में, क्योंकि पाइथन की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर्स है, लाइक मशीन लर्निंग अपन कर सकते हैं, एआई में है, डेटा साइंसेज अपन कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाई लेवल ऑटोमेशन टास्क होता है डेटा कलेक्शन के लिए, एंड टू एंड टेस्टिंग होती है, मतलब जितनी भी न्यू एरा की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सारी पाइथन के अंदर होती है। फिर उसके बाद में है कि एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एडिशनल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है पाइथन के पास, मतलब इतनी सारी लाइब्रेरीज है ना कि आप है ना सारे काम पाइथन से कर सकते हो। एक बार अगर आप ढंग से थोड़ा सा सीख लो ना पाइथन को, तो बहुत ईजी है। ठीक है, रेदर देन आपको कोई मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक टास्क करना है, तो फिर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो अदर देन पाइथन में है सब कुछ। ठीक है, यूज अमाउंट ऑफ एडिशनल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। हाँ, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे होंगे उन सबको अभी तक ये डाउट होगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करूं। तो है ना, कभी भी अगर आप मतलब कोई भी लैंग्वेज के बारे में सोचो ना कि मतलब मेरे को ये पढ़नी चाहिए या मेरे को इससे आगे जाना चाहिए, तो उसका ये देखो इंटरनेट पे कि उसका कम्युनिटी सपोर्ट कितना है, वो पिछले कितने सालों से चलती आई है, फ्यूचर में कितने साल तक रहेगी वो लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी एरर्स में फंस जाओगे ना,
तो वहाँ पे आपका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत काम आएगा। जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे एरर्स, बट अगर कोई नई जैसे डार्ट है या फिर कोई जैसे न्यू लैंग्वेजेस अभी आई है, उन सबको देखोगे तो अभी कम्युनिटी सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब इतना नहीं हुआ है, तो उस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, मतलब कोई भी एरर आया तो तुम्हें नहीं मिलेगा जल्दी से। फिर उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाता है जेंगो और फ्लास्क से। फ्लास्क ये दोनों मतलब लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क जो भी बोल दो आप। फिर उसके बाद में अपन डेवलपमेंट कर लेते हैं जीआई एप्लीकेशन पाइथन से, किंटर और पाईक्यूटीफाई से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्रिएशन ऑफ डेली यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स। मैं बहुत ज़्यादा पाइथन का इस चीज़ में यूज़ करता हूँ कि है ना, मैं डेली यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। मतलब जैसे समझ लो कि अभी आपके मेल्स आए होंगे आप सबको, मतलब जीआरसी डेवलपर्स क्लब के, तो वो सारे मेल्स पाइथन में लिखे, मतलब पाइथन की स्क्रिप्ट से गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया कि अगर समझ लो कि मेरे पास एक फोल्डर है, उसमें है ना बहुत सारे मतलब फाइल्स है जिनका एक्सटेंशन मेरे को चेंज करना है या उनको रीनेम करना है, तो मैं ऐसे करते थोड़ी बैठूंगा। मैं तो प्रोग्रामर हूँ, तो मैं नहीं कर सकता ना भाई एक एक चीज को वापस रीनेम। तो मैं डायरेक्ट पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, सबको रीनेम करूंगा, मतलब ऑर्डर में रीनेम करूंगा, जैसे करना वैसे करूंगा। तो ये मतलब डेली यूटिलिटी स्क्रिप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा पाइथन के लिए आप यूज करो, ठीक है। फिर ये मतलब ये डीप ओवरव्यू हो गया पाइथन का, अपन और ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में। अब इसके बाद में अपन इंस्टॉलेशन पार्ट पे जाते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल करना है पहले, और अपन को एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने। तो बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपको जस्ट गूगल करना है पाइथन, ठीक है। एंड गूगल करते ही जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपकी वो आएगी welcome-to-python.org, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद में डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाके आपका जो पर्टिकुलर ओएस जो आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, उसका स्पेसिफिक वर्जन। अब देखो लिनक्स वालों को तो, लिनक्स और मैक ओएस वालों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका अगर वो वही यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पता है सारी चीज़ें टर्मिनल पे जाके कैसे करते हैं। तो उनके हिसाब से मेरे को ज़्यादा नहीं बताने। और अगर आपको कोई भी डाउट आए लिनक्स रिलेटेड, तो हमारे पास भी एक बंदा है विकास दास, जो मतलब पिछले 3 साल से लिनक्स पे काम कर रहा है। तो लिनक्स के कोई भी डाउट्स हो तो AMA सेशन में 4th डे आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है ना बेसिकली आपको क्या करना है, इसको जब आप ओपन करोगे, मेरे पाइथन पहले से इंस्टॉल है, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक चेक बटन मिलेगा नीचे, ऐड टू पाथ, और वो करके नेक्स्ट कर दो। विंडोज वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया पाइथन इंस्टॉल, कुछ नहीं करना आगे। फिर आपको फिर दूसरी चीज अपन क्या करेंगे कि मतलब ये हाँ, अपन को क्या करना है फिर, मतलब बेस्ट या टर्मिनल विंडो या फिर CMD जो भी आप ओपन करना चाहो, पावर शेल, मतलब जहाँ पे अपन कमांड्स डालते हैं वो सारी। तो अभी मैं इस फोल्डर में हूँ, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट, विंडोज़ वालों के लिए बता रहा हूँ, शिफ्ट प्लस अपन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन पावर शेल विंडो हियर। ये इस पे क्लिक करके आप पावर शेल विंडो ओपन कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको चेक करना है कि पाइथन ने उसका पैकेज मैनेजर इंस्टॉल किया है नहीं। और पाइथन का पैकेज मैनेजर क्या है, पिप है। बेसिकली अगर कोई मेरे को बता सकता है तो बताओ पैकेज मैनेजर क्या होता है। एनीवन, किसी को पता है तो, मतलब पैकेज मैनेजर क्या होता है और उसका काम क्या क्या रहता है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो बता सकता है, मतलब कोई भी बता सकता है, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर का बंदा ही बताए या सेकेंड ईयर का ही बताए। पहले से कुछ पाइथन के कोड पैकेज के फॉर्म में लिखे रहते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं बाद में इंपोर्ट करके उसे। हाँ, मतलब वो खुद के मतलब अपने खुद के रिलेटेड पैकेजेस होते हैं वो, और कुछ इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो चीज यूज होती है वो अपन उसको पैकेज मैनेजर बोलते हैं। तो पाइथन का पैकेज मैनेजर पिप है, ठीक है। चैतन्य, ओके। तो पिप, we will check the version of our what you can say package manager. So pip // version, जैसे ये लिखोगे ना आप और एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तो देखो ये पिप वर्जन आ रहा है यहाँ पे 21.1.3। फिर उसके बाद यहाँ पे पाइथन का वर्जन आएगा 3.9, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लिया। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है, IPython नोटबुक्स इंस्टॉल करनी है। IPython नोटबुक्स क्या होती है,
जिनको फॉर्मली अपन जुपिटर नोटबुक्स बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होती है, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उनमें कोड करने के लिए। बाकी आप कोई भी आईडी भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या क्या करते हैं, IPython नोटबुक इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैं कमांड डालूंगा पिप, क्योंकि वो पैकेज ही है एक, पिप इंस्टॉल JUPYTER एंड एंटर। अब मेरे पहले से इंस्टॉल है तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा। तो आपको आपके क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको होने दो, जो फिर लास्ट में कंप्लीट होके आएगा और हो गई आपकी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल, और कुछ नहीं करना। अभी कि कोई किसी ने एनाकोंडा पैकेज मैनेजर से भी किया होगा, मतलब क्या रहा होगा, मतलब यूज़ किया होगा जुपिटर को, तो वहाँ से भी होता है वो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ओपन करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक। अब बेसिकली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि एक फोल्डर बनाओ, आपको जब भी प्रोग्रामिंग शुरू करनी है मतलब, तो आप एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर को कोई भी नाम दो, नाम देके और फिर उसके अंदर है ना आप जाओ और शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके वहाँ पे जाके आप है ना मतलब ओपन करो। जैसे मैं भी बताता हूँ, मैं मेरे फोल्डर में ओपन करूँगा। सो ये जैसे समझ लो ये डेवलपर सेंट का मेरा फोल्डर है। अब मेरे को यहाँ पे IPython नोटबुक जैसे मैंने बना रखे, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन IPyNB, तो मैं ये करूँगा और यहाँ पे पावर शेल विंडो ओपन करूँगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे पावर शेल विंडो ओपन कर ली मैंने फोल्डर में मेरे स्पेसिफिक, और मेरे को जस्ट लिखना है JUPYTER नोटबुक, जुपिटर नोटबुक विल तो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, हो गया। तो जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो गई। अब देखो क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ा फेमिलियर करा देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू बटन है जिससे कि आपको न्यू पाइथन नोटबुक बनानी है। तो ये पाइथन नोटबुक क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ये क्रिएट होगी। फिर उसके बाद में ये अनटाइटल्ड है ना, यहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी नाम ले लेंगे कि भाई ओके। सो रीनेम करूँगा तो यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक टूल बार है, यहाँ पे दूसरी टूल बार है। तो ये जो आइकन है इससे अपन सेव कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से अपन नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर सकते हैं सेल, यहाँ पे कॉपी फुल डाटा, यहाँ से रन कर सकते हैं, रन का बटन हो गया। कई बार क्या होता है कि अपना कर्नल है ना मतलब बीच में बंद हो जाता है या फिर है ना लोड बहुत ज़्यादा लोड लेता है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से इंटरप्ट करते हैं कर्नल को और फिर यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं। तो अपना जो वर्क होता है वो वापस से रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक मेन चीज़ यहाँ पे है, अभी अपन को कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देखने हैं। तो ये देखो विंडो जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर की आ रही है, तो इसका मतलब ये एडिटेड मोड में है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आएगी, इसका मतलब ये कमांड मोड में है। तो कमांड मोड में जब भी होगी तो यहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड मोड में लगा पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ आप देखोगे यहाँ से हेल्प पे जाओ और कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाओ, तो बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, पर जो सबसे यूजफुल है वो ये है शिफ्ट प्लस एंटर, जो कि रन करता है एक सेल को और सेलेक्ट करता है बिलो सेल को, ठीक है। और भी बहुत सारे देख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इतना हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, लीव। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मेरी जो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी स्लाइड्स पे कुछ नहीं है ना। ओके, मैंने इंस्टॉल कर दिया जुपिटर और ये सब कुछ कर दिया है, ठीक है। लेट्स चेक व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ इन पाइथन। सो मैंने इंक्लूड किया है some basic data types and some data structure, built-in data structure you can say. So यहाँ पे इसके अंदर आप नेम लिखा है, डेटा टाइप जो भी है, फिर उसके बाद में टाइप है। टाइप का मतलब क्या है कि पाइथन उसको कैसे बोलता है, मतलब पाइथन इंटीजर को इंट बोलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें टाइप में लिखी है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग दैट डेटा टाइप। ओके, सो इंटीजर्स, सो इंटीजर्स क्या है कि होल नंबर्स है बेसिकली, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो 2 - 2 300 जो भी है ये इंटीजर हो गए और उनको इंट से डिनोट करते हैं पाइथन के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट है तो 2.3 4.6। अब देखो 100.0, अब ये 100.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, इट्स नो मोर
होल नंबर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लग गया ना, तो उसके बाद में ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स को अपन str से डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग्स होती क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। अब जैसे किसी ने दूसरी लैंग्वेज से आया है कोई, मतलब C++ से, तो वो क्या बोलेगा कि स्ट्रिंग्स तो कुछ होता है, मतलब स्ट्रिंग्स एज सच कोई डेटा टाइप नहीं होता है, क्योंकि उन लैंग्वेजेस में नहीं है वो डेटा टाइप वैसा, मतलब स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर डेटा टाइप नहीं है। वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, एक एक कैरेक्टर रहता है ना, वहाँ पे कैर करके एक डेटा टाइप रहता है, उसकी एरे बनानी पड़ती है, और उस एरे को अपन पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग बोलते हैं कि भाई उसका एरे बनाया, और फिर उसके अंदर एक एक कैरेक्टर रखा, और उसको अपन कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। बस पाइथन में ऐसा नहीं है, एक कैरेक्टर भी लिखोगे वो भी स्ट्रिंग है, 4 कैरेक्टर लिखोगे वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। बस डबल कोट्स में इंक्लूड होना चाहिए, और पाइथन के अंदर वैसे और भी मतलब डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, तो बहुत एकदम फ्लेक्सिबल है पाइथन इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे नंबर लिखा हुआ है, तो अब ये नंबर नहीं रहा, ये है ना मतलब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स मैंने लगा दिए। फिर उसके बाद में सम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि कवर करेंगे अपन। पहले है लिस्ट। अब ये सारी कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स है, ध्यान रखना, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब अपन इनके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स है सारे के सारे। अब कुछ ऑर्डर्ड होंगे, कुछ अनऑर्डर्ड होंगे, वो मैं बताता हूँ कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मतलब अपन पर्टिकुलर एक डेटा टाइप के भी सारी सारी एक लिस्ट बना सकते हैं, और डिफरेंट डेटा टाइप्स रख के भी बना सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड का मतलब हुआ कि एक एक जो डेटा मतलब एक एक ऑब्जेक्ट जो अपन ने रखा है उसके अंदर, उनका अपने पास एक मतलब ऐसे बोल दो कि है कहाँ वो, मतलब कौन सी इंडेक्स पे, वो इंडेक्सिंग अपन को पता है। जैसे 10 रखा है, तो प्रोग्रामिंग में ये ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो 0 पे रखा हुआ है मेरा 10, और फिर हेलो वर्ल्ड जो रखा हुआ मेरा 1 पे रखा है, तो मेरे को एक एक इंडेक्स पता है कि है ना वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि मैं वहाँ पे लूपिंग कर सकता हूँ, मतलब फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब आगे अपन देखने वाले हैं, फॉर लूप वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, तो थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में डिक्शनरी क्या है, डिक्ट से डिनोट होती है अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर है। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड यूज हुआ, ऊपर ऑर्डर्ड यूज हुआ था। अनऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि इसमें अपन इंडेक्सिंग करके नहीं बता सकते, मतलब कि बस हाँ, इंडेक्सिंग इन द सेंस, इंडेक्सिंग से मैं यही बोल रहा हूँ कि 0 1 2 3 करके, ठीक है, वो वाली चीज नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स होती है, इसके अंदर एक की रहेगी। जैसे अपन डिक्शनरी में देखते हैं ना कि भाई इंग्लिश का कोई वर्ड है, तो उसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, तो वो जो चीज है, या फिर ऐसे समझ लो कि विराट कोहली है, तो विराट कोहली के मैं इधर रन लिख दूंगा, कितने रन बनाए उसने। फिर उसके बाद मेरे को डेटा है ना पर्टिकुलर की के साथ स्टोर करना है, मेरे को मैपिंग ऐसे नहीं करनी, 0 1 2 3 से मैपिंग नहीं चाहिए मेरे को मैपिंग चाहिए की वैल्यू पेयर से, ठीक है। ये डिक्शनरी हो गया। फिर उसके बाद में ट्यूपल हो गया। ट्यूपल क्या होता है, बेसिकली जस्ट लाइक लिस्ट होता है, पर इसके अंदर थोड़ा अलग है, चेंज है। ट्यूपल कैसे चेंज है, ये इम्यूटेबल मतलब सीक्वेंस है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, ट्यूपल में एक बार डेटा चला गया ना, तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज कर सकते हैं, वो तरीका क्या होता है वो आपको थर्ड सेशन में बताएंगे, मतलब कैसे चेंज करना है ट्यूपल का भी डेटा अपन, उसकी कोई ट्रिक है वो अपन मतलब देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। बेसिकली वैसे नहीं होगा, मतलब जैसे ये बोल रहा है कि ट्यूपल इम्यूटेबल वो है, वो चेंज नहीं होगा, एरर देगा आपको, ठीक है। तो ये ट्यूपल है। फिर उसके बाद में सेट्स। सेट्स क्या है, सेट्स है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। सेट्स में हमेशा यूनिक ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दिया होगा आपने कि लिस्ट में अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, डिक्शनरीज में अपन कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें या ब्रेसेस बोल दो, ये यूज करते हैं, और ये ट्यूपल के अंदर अपन पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और फिर उसके बाद में इसके अंदर सेट्स के अंदर भी अपन कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, बस इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स नहीं रहेंगे। तो इनका डिक्लेरेशन भी बता देंगे, वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे अपन। फिर उसके बाद में बुलियंस है। बुलियंस क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेशंस पे जो काम आती है,
वो बुलियंस होती है, ट्रू फॉल्स, ये अपन को बताएंगे। फिर उसके बाद में अपन चले जाते हैं अपनी पाइथन नोटबुक पे। ओके, सो बताया उसमें बेसिक डेटा टाइप्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। बाकी अपन आगे भी कवर करने वाले हैं एक डेटा टाइप को, तो उसका कोई इशू नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कवर करते हैं पहले। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या हो गया, जैसे अपन ऐसे देख लो, पाइथन को ऐसे कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे समझ लो मैंने 7+8 किया और मैंने शिफ्ट एंटर, याद रखना शिफ्ट एंटर से रन सेल और नेक्स्ट सेल सेलेक्टेड, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर किया तो 15 जो रिजल्ट है उसका आ गया, माइनस करूंगा तो मैं माइनस आ जाएगा। जैसे मतलब मैं जो कैलकुलेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सेम वैसे हो जाएगा, सब चीज़ वैसे हो जाएगी। 8 × 2 कुछ भी कर दूँ मैं, तो वो जो भी रिजल्ट है पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डिवीजन। अब देखो डिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान देना कि डिवीजन का है जो अपन ये क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। तो इस डिवीजन में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि नोटबुक जब रेफर करो तो प्रॉब्लम ना आए। फॉरवर्ड स्लैश, ओके। सो हाँ, तो इसके अंदर अपन फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे और इससे होगा क्या कि इस डिवीजन के अंदर अपन को हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। जैसे अपन मैथ्स में परफॉर्म करते हैं ना वैसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे 5/2 तो अपन को मिलेगा 2.5, तो एक्यूरेसी है ना, 2.5 एक्यूरेट रिजल्ट है। फिर उसके बाद में जो ये फ्लोर डिवीजन होता है ना, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लोर डिवीजन से क्या होता है, इसका देखो सिंबल भी मैं यहाँ पे लिखा नहीं, ये लिख देता हूँ, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से मतलब रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली फ्लोर डिवीजन के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मैं अगर यहाँ पे 5 फ्लोर डिवीजन करूँ 2, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली रिमाइंडर अपन को जनरेट करके देगा, ठीक है। तो आर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में हाँ देखो कैसे चेक करना है कि जैसे 4 मैंने मोड किया, मोड ऑपरेटर यूज किया, जो परसेंटेज साइन होता है वो, और ये मोड 2 किया, तो 4 का जब 2 के साथ डिवीजन होगा, जब मेरे को जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर अब आपको पता है कि 4 फुली डिविजिबल है, तो फिर 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आ गया। फिर उसके बाद में अगर समझ लो मैंने 5 लिख दिया, तो 5 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं, तो मैं अगर डेसिमल पॉइंट पे ना, मतलब डेसिमल पे नहीं जा रहा मैं, मतलब पॉइंट नहीं लगा रहा, डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूँ, तो 5/2 करूंगा तो 4 से डिवाइड होगा और फिर मॉड्यूलो क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया। फिर उसके बाद पावर में क्या है कि जैसे अपन है ना एक्स की पावर समथिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती है पाइथन के अंदर। तो बेसिकली जैसे 2 है तो मैंने पावर ऑपरेटर कैसे है कि अपन को 2 मल्टीप्लीकेशन साइन लगाने, ठीक है। तो 2 टू द पावर मैंने 2 किया तो रिजल्ट आएगा 4, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ही है। अब यहाँ पे भी तुम मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी लिख सकते हो, जैसे समझ लो कि मेरे को 0.5 जैसे रूट करना है, 5 रूट करना है मेरे को, ठीक है। तो इसका करूँ, इसका रूट 4 का 2.0, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि पावर ऐसे यूज होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इक्वेशंस देख लेते हैं। इक्वेशंस ऐसा है कि समझ लो कि मैंने कर दिया कि 2 + 3 - 4 × 1 एंड डिवाइड बाय समथिंग, सॉरी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं 3, थोड़ा इजी रखते हैं ताकि समझ में आ जाए जल्दी, ठीक है। तो 2 + 3 - 4 डिवाइड बाई ये कर दिया मैंने। फिर इसके बाद में इसमें देखो यहाँ पे है ना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मैटर करता है, जैसे अपन बोर्ड मास में करते हैं ना, सेम वो वाली चीज़ है। तो वो ऑपरेशन में मैटर करेगी कि आपने क्या यूज़ किया। जैसे सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, फिर आपका इधर एडिशन होगा और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो कैसे होगा, जैसे 3 1 है तो 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 हो गया। और फिर यहाँ पे 3 4 5 5 - 12 हो गया, तो -7, ऐसे मतलब रिजल्ट आना चाहिए,
जैसे मैं करूँगा तो माइनस का 7.0 रिजल्ट आएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर समझ लो कि मेरे को है ना ये नहीं करना, ऐसे नहीं परफॉर्म करना, मेरे को तो पहले एडिशन करवाना, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, बस पैरेंथेसिस लगा दो उस ऑपरेटर मतलब उस इक्वेशन को जिसको आपको पहले परफॉर्म करवाना। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस होगा, तो प्लस होगा तो क्या होगा 2 + 3 5 होगा, फिर वापस से वो यूज करने लग जाएगा। सबसे पहले ये होगा डिवीजन 3/1, फिर उसके बाद में 4 3 12 हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे पहले हो गया 5, तो 5 और फिर यहाँ पे आ गया 12 रिजल्ट में, तो वापस 5 - 12 अपना रिजल्ट तो वही आएगा। तो मैंने ऐसे किया तो वही आया रिजल्ट, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे है कि जैसे समझ लो, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी, मतलब जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, वो जो जैसे भी वर्क करते हैं ना, वो वैसे ही ये यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क होते हैं। तो मैंने जैसे ए को वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स, और जैसे अपन ने पढ़ा था बुलियन, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स बुलियन देते हैं, ठीक है, रिजल्ट में। तो मैंने कहा कि जैसे समझ लो ए एंड बी, ठीक है, और मैंने इसको रन किया, तो ए एंड बी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, ठीक है, बाकी सब केसेस में फॉल्स होता है। तो मैंने समझ लो कि इसको हटा के और ऐसे ट्रू बोल दिया, ठीक है, तो अभी इस केस में भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, पर इसको भी हटा के मैंने ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, ठीक है, तो ट्रू आ गया। फिर उसके बाद में जो अपना और ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है कि ए और बी, तो ए और बी में मैंने समझ लो एक को फॉल्स कर दिया, ठीक है, तो ए और बी में क्या हो गया कि जब ए और बी कैसे वर्क करता है कि कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ठीक है, तो जस्ट रन किया मैंने और ये हो गया। फिर उसके बाद में हाँ, डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना, पहले बोल रहा हूँ मैं, फिर मतलब मैं वैसे बीच में बोलूंगा आपको पूछने को, पर जैसे अगर किसी को डाउट आ रहा है कहीं पे भी तो जस्ट आस्क, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देखते हैं अपन। हाँ, इसके अंदर एक छूट गया मेरा, नोट। तो नोट जस्ट क्या करेगा, जो भी आपने वैल्यू असाइन हुई है किसी भी चीज को, और तो उसका ऑपोजिट मतलब कर देगा, जैसे नॉट बी मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आते हैं अपन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है कि ना, जैसे समझ लो कि एक वेरिएबल है ए और मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी 2, ठीक है, और एक वेरिएबल है बी, उसको वैल्यू असाइन कर दी 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट चेक कर रहा हूँ कि इफ ए इक्वल्स टू बी। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज किया इक्वल्स टू, तो जो अपन मैथ्स के अंदर इक्वल टू यूज करते हैं ना, दिस इक्वल्स टू दिस, वो वाला इक्वल टू ये है यहाँ पे, मतलब पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे भी यूज होता है, तो वो जो इक्वल टू मैथ में करते हैं वो ये है। बट सिंगल इक्वल टू जब अपन यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे यूज करें, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस ये जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो इसको असाइन हो रही है, इस ए को, है ना। तो ये वाली चीज थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको, तो मेरे को आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे 1 कर दिया तो ये आएगा फॉल्स, ओके। सो इसी मतलब इसी तरीके से अपन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू सब यूज करते हैं। और ये देखो एक चीज दिखा देता हूँ, ये नॉट इक्वल्स टू वाली चीज। नॉट इक्वल्स टू क्या होता है कि दो चीजें इक्वल नहीं है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ट्रू होगा ये मतलब आंसर कि भाई हाँ भी इक्वल नहीं है। हाँ, अब चलो अपन चलते हैं किस पे, ये वेरिएबल्स के नेमिंग, मतलब अपन नेम्स कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के। तो बेसिकली कुछ रूल्स है जो रोसम ने लिखे हैं 1989 में पाइथन को रिलेटेड, मतलब जो भी वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने पाइथन के वैसे हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हैं, यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली नेम्स में कभी भी नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब सॉरी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नंबर से कभी भी नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेम्स के अंदर यूज होना चाहिए अंडरस्कोर, स्पेसेस नहीं यूज होने चाहिए, ठीक है। और इस मतलब जैसे अपन एक मतलब सिंटेक्स होता है जैसे लिखने का, जैसे बाकी सब लैंग्वेज में कैमल केसिंग बोलते हैं। कैमल केसिंग में क्या होता है कि फर्स्ट जो अपन जैसे कोई भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं
तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर बीच में स्पेस है तो स्पेस नहीं देके अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करते हैं, वो कैमल केसिंग होगी। स्नैक केस पाइथन के अंदर यूज होता है। स्नैक केस में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स के नेम है, अगर उनमें 2 कीवर्ड्स हैं या 2 फ्रेजेस हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्पेस नहीं यूज करके दोनों को अंडरस्कोर से सेपरेट कर देंगे और दोनों ही क्या बोलते हैं, मतलब लोअर केस रहेंगे, ठीक है। तो ये स्नैक केस होता है और ये पाइथन की मतलब यूज होता है, मतलब पाइथन में। अब आप जब भी कोड देखोगे किसी का तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। और ये वाले सिंबल्स अपन को यूज नहीं करने हैं, एरर आएगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इट्स कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस पेपेट दैट नेम्स आर लोअर केस। अब ये पेपेट क्या है, तो पेपेट एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि पाइथन के डेवलपर्स ने लिखी है। वो ऐसे बोलते हैं कि पाइथन को आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब रिगार्डिंग उसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे, मतलब पेपेट अगर आप नहीं यूज करोगे, बस आपको एक सजेशंस आएंगे। जैसे आप आईडीज यूज करोगे ना, तो वहाँ पे सजेशंस आएंगे कि जैसे 2 लाइन के बीच में अगर 2 ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है तो 2 लाइन स्पेस दो, ऐसे मतलब सजेशंस आएंगे, तो वो यूज करने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अवॉइड यूजिंग कैरेक्टर्स lower case letter L, upper case letter O and upper case letter I as single character variable names, ठीक है। फिर उसके बाद में कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो पाइथन के इनबिल्ट कैरेक्टर्स है ना, वो कभी भी वेरिएबल्स में गलती से भी यूज नहीं करना है, एरर्स आएगा। क्योंकि जैसे समझ लो कि आपने लिखा किसी वेरिएबल का नाम इंट, तो पाइथन को तो इंट एक डेटा टाइप पता है, पर आपने वेरिएबल का नाम दे दिया इंट, तो वो डेटा टाइप ही समझेगा, वो तुम्हारे वेरिएबल का नाम नहीं समझेगा। तो बेसिकली वो वाली चीज़ है, आप कभी भी लिस्ट नहीं यूज करोगे, डिक्ट नहीं यूज करोगे, जो भी मैंने डेटा टाइप्स बताया उनके नेम यूज नहीं करने हैं वेरिएबल में, ठीक है। ये वेरिएबल का हो गया। अब बेसिकली मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हाँ, क्यों अपन को क्यों चाहिए वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या सारी चीज़ें, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मतलब BMI कैलकुलेटर देखते हैं अपन, अगर जैसे समझ लो मैंने A की वैल्यू असाइन कर दी 7, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने B को दे दिया मैंने 1.5, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने C बोल दिया, हाँ, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस क्यों यूज़ करने चाहिए, उसका रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। तो C मैंने बोल दिया A डिवाइडेड बाय B and B to the power 2, ओके। सो ये हो गया। एंड मैं अब यहाँ पे एक मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट, जो सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखो, प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करेगा जो भी अपने पास वैल्यू आई है उसको, ठीक है। तो मैं जैसे कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आया, 31 नहीं आया यहाँ पे। तो बेसिकली जब अपन ये कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अगर कोई तीसरा रीड करा जिसको BMI कैलकुलेटर का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो उसको कैसे पता चलेगा हाइट क्या है, वेट क्या है। अपन एज्यूम करके कुछ नहीं चल रहे हैं, है ना। तो सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए ना। अब कोई कह देगा नहीं 70 तो ज्यादा है, इसका मतलब ये तो वेट ही होना चाहिए, 1.5 तो कम है, इसका मतलब ये हाइट ही होना चाहिए। तो ऐसे एजम्पशंस नहीं चलते हैं। जब 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे ना, तब पता चलेगा कि मतलब वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली देखो जैसे क्या है कि अभी मैंने एक मतलब वेरिएबल डाल दिया WIGST करके, और उसको मैंने 70 दिया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया हाँ भाई वेट 70, HEIGST कर दिया, और मैंने कर दिया कि हाँ भाई 1.5 है हाइट हाइट। तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया। अब ये जैसे BMI है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स। तो फिर यहाँ पे मतलब मैंने कर दिया WIGST और यहाँ पे / और GIGST आउटपुट, ओके। सो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब देखो जुपिटर नोटबुक में है ना, मतलब ऐसा सजेशंस नहीं आती, या मतलब AI नहीं है इसके अंदर, तो अपन को पूरा सब हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 31.0 सेम रिजल्ट आया, बट इस कोड को देखने में और इस कोड को देखने में रात दिन का अंतर है।
मतलब इसके अंदर ABC यूज़ किया मैंने, इसके अंदर प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया, तो मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भाई क्या चल रहा है मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये नीड ऑफ प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन एंड नीड ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद में अपन कवर करते हैं थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ बतानी थी, हाँ। इसके अंदर देखो ये डायनेमिक टाइपिंग है देखेंगे, फिर वेरिएबल रीअसाइनमेंट देखेंगे, और फिर टाइप ऑफ वेरिएबल एंड फिर टाइप कास्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ डायनेमिक टाइपिंग किसी को पता है क्या क्या होती है? अगर कोई बताना चाहे तो डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, इफ यू नो। डायनेमिक टाइपिंग, एनीवन फ्रॉम यू, किसी को पता है डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है, या स्टैटिकली टाइप डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस क्या होती है? नहीं पता, चलो फिर अपन चलते हैं, ठीक है। तो देखो डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस क्या होती है, बेसिकली कंपाइल्ड, सॉरी 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 डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस जो होती है वो क्या करेंगी कि मतलब दो तरीके की होती है, डायनेमिक टाइप और स्टैटिकल टाइप। तो पहले मैं बताता हूँ स्टैटिकली टाइप क्या होती है। जैसे समझ लो मैं जावा का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे जावा का एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो जावा में क्या होता है कि जैसे अपन इंट एक, मतलब मैंने कोई वेरिएबल का नेम देना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा इंट नम इक्वल्स टू और समथिंग असाइन कर दूंगा। तो मेरे को पहले ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर करके और फिर समझ लो मेरे को एक नया नंबर है उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ नम प्लस समथिंग 5, है ना। तो ऐसा मेरे को ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जावा में, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोड लिखा ना, फिर उसके बाद में जब मैं इसको SOUT होता है वहाँ पे शायद, हाँ SOUT करके मतलब सिस्टम डॉट आउट को पूरा लिख के मैं एन करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे को कंपाइल करने के टाइम ही एरर दे देगा। क्या दे देगा एरर? कि आपने जो ये एन यूज़ किया है ना, ये कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो डिक्लेयर करो पहले और फिर आओ वापस, ठीक है। तो कब मेरे को एरर मिल गया? कंपाइलेशन के टाइम ही एरर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, मतलब मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने जो एन यूज़ किया है वो मेरे को नहीं यूज़ करना है, मैंने डिफाइन ही नहीं किया उसको, तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा पहले उसको, जो एन एन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, वो, ठीक है। ये जावा हो गई। अब मैं इसको इसके नीचे बता देता हूँ, जैसे पाइथन का एग्जांपल देता हूँ। तो पाइथन में क्या होगा, वेरिएबल को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पाइथन में क्या होगा बेसिकली कि जैसे मतलब मैंने यहाँ पे मेरे को कोई भी एक तो असाइनमेंट जरूरी नहीं है, तो मैंने सीधा किया नम इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करूँगा एन इक्वल्स टू जो भी है नम प्लस मेरा नंबर जो भी है, ठीक है, ये कर दिया और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं जब प्रिंट करूँगा ना एन को, तो पाइथन एरर नहीं देगा। क्यों? पाइथन में तो डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है, पाइथन ने नया वेरिएबल मान लिया एन को नया वेरिएबल मानते ही वो एन डिक्लेयर हो गया, एन में एन नम की वैल्यू स्टोर हो गई, कोई भी चीज़ नहीं पता चली है ना। तो कितनी मतलब कितने ज़्यादा मतलब आप वर्स्ट कंडीशन में जा सकते हो जब आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, वहाँ पे आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं किया और कोई भी वेरिएबल का गलती से मतलब आपसे गलती हुई ना, नम लिखना था NUM लिखना था, मेरे को एन नहीं लिखना था यहाँ पे, पर मैंने एन लिख दिया। तो एन लिखते ही वो पाइथन ने तो मान लिया, क्योंकि पाइथन को कोई मतलब नहीं है, नया वेरिएबल असाइन कर देगा वो। पर यहाँ पे जावा नहीं मानेगा, जावा बोलेगा आपने ये यूज ही नहीं किया पहले, तो आपको पहले इसको असाइन करना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पर पाइथन को कोई मतलब नहीं है, डिक्लेरेशन हो चुका है। तो ये होती है डायनेमिक टाइपिंग। तो पाइथन ने जो किया ना वो होती है डायनेमिक टाइपिंग, और जो जावा ने जो किया ना वो होती है स्टैटिक टाइपिंग। तो क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिर उसके बाद में है कि वेरिएबल रीअसाइनमेंट। अब वेरिएबल रीअसाइनमेंट वाली चीज़ क्या है? कुछ नहीं है, जो मैंने ऊपर बता दिए वैसे तो, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। ये समझ लो कि मेरे एक वैल्यू है, उसको मैंने कुछ असाइन किया है ना, और फिर इस वैल्यू को मेरे को वापस से इंक्रीज करना है। तो मैं एक तो ये चीज़ कर सकता हूँ कि a इक्वल्स टू a प्लस समथिंग न्यू नंबर, जो भी मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीअसाइन हो गया, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू 4 थी, फिर यहाँ पे 4 + 1 5
और ये 5 वाली वैल्यू रीअसाइन होके इसमें चली गई। अब एक तो तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या होगा, शॉर्टकट होता है इसका कि अपन यह ऐसे यूज करते हैं, प्लस और इक्वल्स टू। हो गया, प्लस और इक्वल्स टू करते ही इसने मान लिया कि इसके अंदर a इक्वल्स टू a प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो a के अंदर कंटिन्यूअसली 1, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगा है पर 1 ऐड हो जाएगा। पर आप ये यूज करोगे कहाँ पे, फॉर लूप में नहीं, वाइल लूप में यूज करोगे जब आपको इंक्रीमेंट करना होगा उस इटरेटर का। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इंक्रीमेंट, मतलब वेरिएबल रीअसाइनमेंट है ना, और इंक्रीमेंटेशन भी यही होता है। ठीक है, फिर सिमिलरली आप माइनस इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू भी यूज करते हो, डिवीजन इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हो। तो ये आप देख लेना और मतलब थोड़ा आप भी सर्च करना क्या होता है। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं अपन। टाइप ऑफ वेरिएबल बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन है, मेथड है टाइप, पाइथन के अंदर टाइप ऐसे है ना। तो इस टाइप के अंदर आप जो भी डालोगे ना तो आपको उसकी क्लास बता देगा वो, मतलब क्लास या वो कौन से, मतलब क्लास मतलब कहाँ से बिलोंग करता है वो। जैसे समझ लो कि मैंने 4 डाल दिया, तो 4 डाल दिया तो मतलब 4 क्या, इंट है ना, तो ये बताएगा कि ये इंट है, टाइप फंक्शन। फिर उसके बाद में समझ लो मैंने इसके अंदर डाल दिया कि है ना, स्ट्रिंग डाल देता हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग डाल दिया तो मेरे को बता देगा str है ये। और मैंने कुछ भी जैसे जो भी डालूंगा ना मैं इसके अंदर, जैसे समझ लो कि लिस्ट डाल दिया, मतलब लिस्ट वैसे पढ़ा ही नहीं है अभी मैंने, पर ठीक है एक बार मैं जस्ट चेक करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी एरर आया इसके अंदर, इसके अंदर क्या बोल रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया। ठीक, लिस्ट, तो ये लिस्ट है। ठीक है, अब ये तो होगी टाइप। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये तो होगी टाइप चेकिंग, चेक कैसे करते हैं किसी चीज का टाइप, कैसे चेक करते हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि टाइप चेकिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। टाइप कास्टिंग होती है कि एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से दूसरे पर्टिकुलर डेटा टाइप में उस वेरिएबल को ट्रांसफर कर देना, या फिर ऐसे बोल देना उसका टाइप चेंज कर देना। जैसे है ना, मैं यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ जो मैंने मतलब ऐसे थोड़ा सा सही से समझ में आएगा उसमें। ऐसे क्या है कि जिस मतलब मैंने डिजिट करके एक वैल्यू डिफाइन किया, डिजिट इक्वल्स टू 7। ओके, सो डिजिट इक्वल्स टू 7 डिफाइन किया। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे str डिजिट डिफाइन करते हैं। ठीक है, str डिजिट, और इसको अब मैं क्या करूँगा, str डिजिट में चेंज करूंगा इसका, मतलब डिजिट का टाइप चेंज करके असाइन करूंगा इसको। तो मेरे को बस टाइप कास्टिंग के लिए कुछ नहीं करना होता। जो भी मैं टाइप, जैसे इंट है तो इंट और उसके ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर वो जो चीज़ मेरे को कास्ट करनी है, चेंज करनी है, वो डाल दूंगा। तो str डिजिट में क्या है कि मेरे को str में चेंज करना है तो str लिखूंगा, str लिख के ब्रैकेट्स डालूंगा और मैं डिजिट की वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ डिजिट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ टाइप ऑफ str डिजिट। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो दो चीज़ें रन की ना, तो पाइथन ने लास्ट वाली रन करता है। तो इसको भी मेरे को या तो असाइन करना पड़ेगा या एक एक करके दिखाना पड़ेगा। चलो एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या है, str डिजिट का टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे डिजिट का टाइप चेक करूँगा तो इंट बताएगा। ठीक है, तो इंट हो गया। तो ये होगी टाइप कास्टिंग कि भाई है ना, एक टाइप से दूसरे टाइप में कास्ट करेंगे। अब समझ लो ये str है तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फ्लोट डिजिट करना चाहता हूँ, तो फ्लोट डिजिट करूँगा तो मेरे को फ्लोट यूज करना पड़ेगा डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट यूज करूँगा और उसके अंदर मैं str डिजिट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको समझ लो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ फ्लोट का डेटा टाइप क्या है ना। अच्छा हाँ ठीक है, फ्लोट। तो ये आ गया टाइप ऑफ दिस डेटा टाइप, दिस वेरिएबल इज फ्लोट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, मतलब कोई भी पूछ लो, मतलब कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क। वैसे तो मैंने सब चीज़ क्लियर की है, पर ठीक है अगर है तो पूछ लो। हाँ अब देखो अपन आते हैं क्रिएटिंग, हाँ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स है तो
तो मैं आपको पहले स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ स्ट्रिंग्स क्या होती है। हाँ, स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। पाइथन कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी एलिमेंट इन द स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस। अब है ना पाइथन के अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग्स ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ये सबको पता होता है। अब है ना पाइथन ट्रैक करके रखता है, एक एक कैरेक्टर ट्रैक करके रखता है कि जो है ना स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो ट्रैक करके रखेगा और अपन उसमें इंडेक्सिंग ऑपरेशन, स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अपन इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड प्रिंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये 3 चीजें अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो ठीक है, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स में मैं पहले दिखाता हूँ कि सिंगल कोड से जो स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो जैसे समझ लो कि ओके, सो ये मेरी होगी सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे समझ लो मैंने डबल कोटेड कोई स्ट्रिंग बना दी थी, तो ठीक है, तो ये डबल कोटेड स्ट्रिंग हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गई कि सिंगल और डबल कोटिंग का मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड कोटेड बोल दो या फिर ऐसे मतलब बोल सकते हो आप। अब जैसे समझ लो कई बार अपन को यूज करना पड़ता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे क्या लिखूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एस इक्वल्स टू एंड मेरे को समझ लो ऐसे लिखना है कि मैं जब मैं रन करूंगा तो एरर दिखाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, तो मेरे को कोटेशन भी यूज करना है और है ना मेरे को स्ट्रिंग भी दिखानी है ऐसी कैसी, तो मैं क्या करता हूँ मिक्स्ड यूज करता हूँ। मैं इस पूरी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कोटेशन दिख जाएगा। तो पाइथन को क्या समझ आएगा, ये पूरी स्ट्रिंग है पर ये जो यहाँ पे यूज किया इसने सिंगल कोट, ये इस स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो ये मान के चलेगा ये चीज। और मैं जब इसको सॉरी मैंने रन प्रिंट नहीं किया ना, कैसे प्रिंट अस। ठीक है, तो ये मेरे को दिखा रहा है कोटेशन के साथ। ठीक है, ये होगी अपनी क्या बोलते हैं अगर अपन को मिक्स्ड यूज करना है तो। फिर उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती है कि मैं ट्रिपल कोट्स यूज होता है और है ना जैसे जैसे मैं लाइंस लिखूंगा वैसी ही वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब मैं जैसी जैसी लाइन लिखूंगा ना वैसी की वैसी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे लाइन लिख रहा हूँ वो वैसी वैसी प्रिंट हो जाएगी जब मैं मतलब प्रिंट करके इसको ऐसे दिखाऊंगा ना। तो जैसे मैंने इसको असाइन नहीं किया तो वेरिएबल असाइन, देखो ऐसे समझ में आता है। पहले जब अपन कोड करते हैं तब समझ में आता है कि भाई क्या चीज है। तो इक्वल्स टू और टी इक्वल्स टू और मैंने किया टी। तो जैसे देखो अब मैंने यहाँ पे स्पेसेस छोड़े ब्लैंक, तो ये स्पेसेस ऐसे कैसे आ गए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना। तो वो ऐसा है कि भाई जैसे तुम लिखोगे ना वैसा का वैसा वो शो कर देगा। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, देखो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में क्या है कि जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया माय नेम इक्वल्स टू, ठीक है, फिर मैंने एक स्किल वेरिएबल दिया, स्किल वेरिएबल दिया ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, रिजल्ट करके फ्लैश करके बना दिया एक, उसमें मैंने प्लस ये ऐड कर दिया स्किल और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी पता है मेरे को, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो ये आ गई स्ट्रिंग, कैसे आई, प्लस ऑपरेटर मैंने यूज किया। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजों को ऐड कर देना। जैसे एडिशन की ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है, पर कॉन्केटिनेशन फ्रेज यूज करते हैं जब स्ट्रिंग को अपन ऐड करते हैं, तो ये दो स्ट्रिंग को अटैच कर देगा एक साथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि ना ये आई है ना, आई और ये मेरा जो करेक्टर यहाँ पे वो दोनों मिक्स होके आ गए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे स्पेस दूंगा ना तो ये फिर स्पेस होके दिख जाएगा मेरे को। ओके,
सो ये हो गया। फिर उसके बाद में ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना देख लो। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऐसा होता है। स्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अब देखो, स्केप कैरेक्टर्स होते हैं कि समझ लो कि मेरे को कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक मतलब बैकवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा और है ना फिर उसको जो कैरेक्टर मेरे को यूज़ करना है वो, अब स्केप कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। आप है ना मतलब जैसे W3 स्कूल्स वगैरह जो वेबसाइट्स है उन पे जाके देखना पाइथन में, तो बहुत सारे हैं, या पाइथन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे समझ लो मैं दिखाता हूँ आपको कि न्यू लाइन करके मैंने एक वेरिएबल बनाया इसमें, न्यू लाइन इक्वल्स टू, और ये डाल दिया, और फिर उसके बाद में मैं एक टैब करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये दो स्केप कैरेक्टर कैसे यूज होते हैं? फॉर बैकवर्ड स्लैश एंड ये होता है यूज अपने न्यू लाइन के लिए, टैब जो मैंने लिखा है वो टैब के लिए यूज होता है। तो मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, समझ लो कि कोई ऐसे स्ट्रिंग शो करना चाहता हूँ, तो मैंने रिजल्ट, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन वगैरह सब दिखाऊंगा, तो रिजल्ट करूँगा मैं, और जैसे समझ लो कैसे करना है मुझको, एंड यहाँ पे कॉन्केटिनेट करूँगा मैं किसको, टैब को कॉन्केटिनेट किया, फिर टैब के साथ मैंने कॉन्केटिनेट किया किसको, यहाँ पे मैंने माय नेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे माय नेम डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। नेम एक स्ट्रिंग है, टैब भी एक स्ट्रिंग है, माय नेम भी एक स्ट्रिंग है, पर मैं इसको एक मतलब आपको फॉर्मेटिंग में दिखाना चाहता हूँ। देखना अभी माय नेम, फिर मैं यहाँ पे समझ लो न्यू लाइन डालना चाहता हूँ, तो न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन डाल दी। फिर मैं वापस से कॉन्केटिनेट करूँगा किसके साथ, फिल लिखूँगा, फिर कॉलन लिखूँगा, फिर मैं इसके अंदर एक टैब लगाऊँगा, ठीक है, टैब लगाऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि स्किल का जो कीवर्ड है मतलब वेरिएबल है वो यूज़ कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये कैसे शो होता है देखो, ठीक है, मतलब नेम, सबसे पहले ये नेम आया, ये स्पेस के साथ पूरा, फिर ये टैब आया, डिस्टेंस आई, टैब जो अपन मतलब 4 स्पेसेस की बोलते हैं, 8 स्पेसेस या 4 स्पेसेस। फिर उसके बाद में ये माय नेम आ गया, ठीक है, फिर वापस एक न्यू लाइन आई, न्यू लाइन यहाँ पे आ गई, फिर ये स्किल, ठीक है, फिर टैब एंड देन वी, जो स्किल मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाला था वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिंट फंक्शन देखते हैं अब बेसिकली। हाँ, अब आते हैं अपन प्रिंट फंक्शन पे जो मैं यूज़ कर रहा था अभी तक। अब देखो प्रिंट फंक्शन कैसा होता है, प्रिंट फंक्शन में क्या क्या होता है, एक तो आएगा वैल्यूज, ठीक है, फिर वैल्यूज आएगी, एक आता है सेलेक्टर, है ना, या सेपरेटर होता है या सेलेक्टर होता है, ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद में है ना ये इसके अंदर आता है एंड करके, ठीक है, एंड करके आता है, एक शायद आता है इसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट भी आता है, फाइल ऑब्जेक्ट, है ना, एक ये आता है, एक फ्लैश आता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। प्रिंट के अंदर सिर्फ वैल्यूज नहीं जाती है, मैंने अभी तक वैल्यूज यूज किया, ये दोनों चीज़ें आपको मतलब थर्ड सेक्शन तक पता चल जाएगी क्या होती है, कैसे यूज होता है, कि फाइल हैंडलिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन अभी कर दीजिए, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया कोई भी ये एक हो गई स्ट्रिंग, फिर उसके बाद में एक और स्ट्रिंग लिख देते हैं अपन कोई भी, ठीक है। फिर है ना, अब देखो
ये है ना एंड जो क्या करेगा, और ये यूज करेंगे अपन मतलब बहुत बार। बेसिकली प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एंड के अंदर है ना बैकवर्ड स्लैश एंड लिख के रखता है, मतलब जब भी आप प्रिंट करोगे तो एक न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। पर आपको क्या करना है, समझ लो कई बार ऐसी जरूरत पड़ी कि न्यू लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ऐसे सिर्फ कॉलन डाल के छोड़ दूंगा, तो फिर वो जो बाय डिफॉल्ट जो चीज होगी या एट्रीब्यूट जो भी लगाया हुआ है इस फंक्शन के अंदर, वो चेंज होके सिंपल हो जाएगा। और जस्ट मैं प्रिंट करूंगा ना, तो ये ऐसे शो होगा मेरे को, मतलब कि ना एंड यहाँ पे देखो न्यू लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई मतलब न्यू लाइन नहीं है। बट देखो मैं जस्ट शो करने के लिए दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ ना वो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने दो न्यू, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हर बार मेरे को प्रिंट के बाद में मतलब एंड ऑफ द दिस स्ट्रिंग मेरे को क्या करना है कि दो लाइन का गैप छोड़ना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही करूँगा, देखो डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना, ये दो लाइन की डिस्टेंस है। तो ये हुआ प्रिंट फंक्शन। फिर इसके बाद में टेकिंग यूजर इनपुट एंड प्रिंटिंग। हाँ, तो यहाँ पे जैसे है ना एक इनपुट फंक्शन होता है अपन यूज करते हैं पाइथन के अंदर, वो क्या होता है बेसिकली यूज होता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, इसको यूज करता हूँ, यही जो अपना फ्रेज चल रहा था इसको ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो माई नेम है ना, इसमें मैं माई नेम नहीं रखूँगा, ठीक है। माई नेम नहीं रखूँगा, इसमें इनपुट लूँगा यूजर से। मेरे को मेरा नाम नहीं लेना, मेरे को यूजर का नाम लेना। और जो प्रॉम्प्ट इसके अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज आएगी, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, टर्मिनल विंडो पे जो दिखेगा अपन को, है ना, वो मैसेज जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक इनपुट ले लिया मैंने, फिर मैं एक इनपुट यहाँ पे ले लेता हूँ, इनपुट, सॉरी ये स्ट्रिंग आगे लगती है, इनपुट, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे क्या है, स्किल। ओके, ये हो गया। अब मेरा यहाँ पे एक मैसेज फॉर्मेट करके दिखाना है मेरे को, मैसेज, मैसेज फॉर्मेट करके दिखाना है, इसको मैं अभी निकालूंगा। यहाँ पे एक बॉर्डर डालता हूँ, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अपन है ना फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं मैसेजेस की, या जो भी अपन डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी। तो जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन डाल दी, ठीक है। अब देखो मैसेज, अब मेरे को मैसेज क्या डालना है, मेरे को मैसेज डालना है कि मेरे को सबसे पहले बॉर्डर डालना है, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर डालना है, तो मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में मेरे को बॉर्डर के बाद में क्या डालना है, न्यू लाइन आनी चाहिए, तो मैंने न्यू लाइन डाल दी। फिर उसके बाद में मेरे को न्यू लाइन के बाद में क्या चाहिए, टैब चाहिए, दो दो टैब, तो दो टैब लगा दिए। फिर उसके बाद में मेरे को मैसेज डालना है, मतलब वेलकम टू डेवलपर्स एंड, ओके। तो ऐसा मेरे को मैसेज डालना है। फिर मेरे को बेसिकली क्या करना है, एक वापस से न्यू लाइन ऐड कर देनी है, न्यू लाइन ऐड कर देनी है। फिर वापस से मैं दो टैब यूज़ करूँगा। फिर मैं वापस से क्या करूँगा, जो माई नेम आया ना उसको रख दूँगा, फिर मैं वापस से मैं यहाँ से कॉपी पेस्टिंग शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कोई बता रहा है क्या मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद को डेवलपर फालतू में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, कोई बता सकता है क्या मेरे को? एक जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ। एनीवन, कोई भी बता सकता है मैं यहाँ पे मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा सब कुछ सही हूँ, पर कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? एनीवन, किसी को पता है तो?
ना ब्रैकेट्स नहीं है वो, मैं मतलब इसको अगर यहाँ से प्लस साइन हटा दूंगा तो ब्रैकेट्स पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स यूज ही नहीं करने हैं, ब्रैकेट्स का कोई सीन नहीं। मैसेज में कोई मिहिर बोल रहा है ब्रैकेट्स, नहीं मिहिर ब्रैकेट्स का सीन नहीं है। और किसी को कोई, मैं मैसेज बॉक्स देख रहा हूँ, किसी को कुछ आइडिया है कि मतलब अपन कुछ तो भी गलत कर रहे हैं यार यहाँ पे, मतलब इतना सारा मैं लिख रहा हूँ इसका कोई वर्थ नहीं है, मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं अपन इसमें। तो बेसिकली है ना, देखो पाइथन की बात नहीं है, पूरे प्रोग्रामिंग की ही बात है। अपन एक कंसेप्ट होता है मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर, DRY, ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब है ना, अपन को कुछ भी करना है तो अपन रिपीट नहीं करेंगे खुद को, अपन को जैसे चेंजेस करने हैं वो पहले ही कर लो, और कोड जितना छोटा हो सकता है ना उतना कोड छोटा लिखो। तो बेसिकली मैं ना यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा हूँ कि मैं बार बार वेरिएबल के नेम्स यूज कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को न्यू लाइन को न्यू लाइन ही रखना है, पर जो टैब है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं डबल टैब क्यों लगा रहा हूँ, मेरे को यहीं पे डबल टैब लगा देना चाहिए, तो यहाँ पे डबल टैब लगा दिया। फिर उसके बाद में ये जो वेरिएबल कम हो गए ना, तो ये वाली चीज़ है, ये कम हो गई। फिर उसके बाद में चलो ये बॉर्डर के बाद में मेरे को न्यू लाइन चाहिए, न्यू लाइन के बाद में मेरे को यहाँ पे टैब चाहिए, मैं एक टैब लिखूंगा 2 की जगह, थोड़ा सा कम हुआ ना। फिर उसके बाद में अब मेरे को यहाँ पे टैब के बाद में क्या चाहिए, एक न्यू लाइन चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, फिर वापस से मेरे को एक टैब चाहिए, फिर मेरे को क्या चाहिए, मैसेज माई नेम चाहिए, माई नेम चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को एक न्यू लाइन चाहिए, फिर उसके बाद में मेरे को टैब चाहिए, फिर उसके बाद में मेरे को स्किल चाहिए। ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे को बॉर्डर चाहिए, अभी भी किसी को लग रहा है क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या कर सकते हैं अपन चेंजेस, कोई आइडिया, कोई बताना चाहे कुछ आइडिया कि अपन किस कुछ तो भी मतलब और भी कम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। नहीं बता रहे क्या? हाँ विकास बोल रहा है हाँ कर सकते हैं, विकास बता सकता है क्या कर सकते हैं अपन वहाँ पे। डायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वैसा कोई सीन नहीं है, पर वो तो बात बराबर ही हुई ना, मतलब मैं वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ या डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब एज सच डिफरेंस नहीं आएगा ना। डिफरेंस इन द सेंस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अपन को ये जो मैसेज है ना इसको छोटा करना है, दिखने में छोटा होना चाहिए। मैं बहुत कुछ रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि मैं न्यू लाइन और टैब है ना, इन दोनों को रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं इसको किसी नए वेरिएबल के साथ चेंज कर सकता हूँ और उसको मैं कुछ बोल सकता हूँ कि मेरी फॉर्मेटिंग है ये, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरा फॉर्मेटिंग करके एक वेरिएबल है, उसमें मैंने न्यू लाइन और टैब वाली चीज ऐड कर दी, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ ना, इसको हटाऊंगा और मैं फॉर्मेटिंग वेरिएबल यूज कर दूंगा। तो ये न्यू लाइन टैब फॉर्मेटिंग ठीक है, स्किल बॉर्डर। अब ज्यादा चीजें अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बस एक फ्रेज है जो कि मतलब वेरिएबल में डालना चाहिए था, ठीक है, पर उसका कोई इतना नहीं है। तो अब मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ, कोई एरर नहीं आए मे बी। हाँ व्हाट्स योर नेम, तो मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में आया स्किल। तो अब देखो प्रॉम्प्ट हो रहा है, अपन को चीजें पूछी जा रही है, यूजर से इनपुट ले रहा है ये, ठीक है।
तो कुछ भी जैसे पाइथन डाल दिया मैंने, तो एंटर किया, तो ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। मैंने बॉर्डर के बाद स्किल के बाद में एक न्यू लाइन और टैब वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ न्यू लाइन ऐड करूँगा, स्पेसिफिक होना है ना मेरे को। बट आपको समझ में आ गया ना, मतलब हो रहा है वो प्रिंट तो, और अपन ये मतलब चेंजेस कर पा रहे हैं। हाँ, इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं दिखाना चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था इससे, इस मतलब इनपुट वाले मेथड में, कि अपन इनपुट तो यूजर से लेना, वो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, वो बहुत इजी है, इनपुट डालो और यूजर से इनपुट हो जाएगा। पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि अपन को रिपीट नहीं करना। सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात है। अभी आप पाइथन सीख रहे हो, कल को आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, C++ सीखोगे, वहां पे भी यही करना है अपन को। अगर कोई अपन रिपीट कर रहे हैं खुद को, तो फिर वो नहीं करना, वो गलत जा रहे हो। तो मतलब अप्रोच देखो, कोई दूसरी अप्रोच देखो कि भाई अपन कैसे इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन आते हैं स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज पे, मेथड्स पे। तो देखना अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कि स्ट्रिंग में इंडेक्सेस होती है, वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऐसे होती है कि 0 1 2 3 4 5 अप टू 5, ठीक है, ऐसे। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, वो कैसे होती है कि पीछे से शुरू कर दो, मतलब -1 -2 -3 -4 -6, ठीक है। तो ऐसे इंडेक्सिंग होगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है कि ताकि आपको जब रीड करो वापस से, ये नोटबुक मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, वी यूज ब्रैकेट्स after an object to call its index. We should also note that indexing starts with 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो अब जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन ले लेता हूँ मैं, पाइथन ले लिया, ठीक है। अब मैं पहले इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलग से कवर कर रहा हूँ, तो इंडेक्सिंग बता देता हूँ। तो इंडेक्सिंग जस्ट ऐसे है कि मेरे को पाइथन का पी शो करना है या निकाल के रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि 0th इंडेक्स प्रिंट करूँगा, तो पी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब जैसे मैंने -1 डाला, बैकवर्ड इंडेक्सिंग करने की ट्राई की, तो एन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एन सबसे लास्ट में है और पी पहले है, तो उसके हिसाब से जैसे -2 करूँगा तो बैकवर्ड से इंडेक्सिंग होके ओ आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड से जैसे, और फॉरवर्ड से जैसे समझ लो मैंने 1 किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंडेक्सिंग हो गई, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें अलग नहीं है। फिर उसके बाद म्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है। म्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या है, जैसे समझ लो कि मैंने st को पाइथन बोला है ना, पाइथन बोला मैंने इसको, और मैं क्या बोल रहा हूँ अब, क्या है ना, मेरे को तो y नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे कुछ और चाहिए, r चाहिए समझ लो। तो मैं अगर ऐसे करूँगा ना, st फर्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इसको चेंज करने का ट्राई करूंगा, तो मेरे को ये करने नहीं देगा, मतलब एरर दिखाएगा। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, हाँ, जैसे मतलब अब मैंने मेरे हिसाब से मैंने चेंज कर दिया, st1 इक्वल्स टू r कर दिया, पर अब मैं जब st को प्रिंट करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे एरर आएगा। क्या बोल रहा है ये, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट किसी भी आइटम, और देखो लाइन 3, तो पाइथन के एरर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कौन सी लाइन में एरर है, क्या एरर है, उसको रिजोल्व कैसे करना है, सब कुछ इसी के अंदर पता चल जाएगा। तो ये भी बहुत सही है। तो ये है str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असाइन, तो ये ध्यान रखना, ये टाइप एरर आएगा जब आप असाइनमेंट करो। और यही होती है इम्यूटेबिलिटी, जो वर्ड अपन पहले यूज कर रहे थे ना, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। म्यूटेबल मतलब चेंज हो जाना, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होना। तो जो ये क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है, वो इम्यूटेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या है, जस्ट अपने ये है कि जैसे मैंने वही ले लेता हूँ, सेम स्ट्रिंग के साथ चलते हैं ताकि आइडिया रहे क्या चल रहा है। पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है कि जैसे समझ लो कि मैंने और हाँ, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने,
कोलन ये यूज करते हैं अपन स्लाइसिंग करते वक्त, तो इसके अंदर दो ऑपरेटर जाते हैं स्लाइसिंग के वक्त, स्टार्टिंग और एंडिंग, कोलन के बाद एंडिंग। तो समझ लो मैंने ऐसे किया 0 और कोलन, मैंने एन इंडेक्स पे कुछ नहीं रखा, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब ये प्रिंट करूंगा ना, और हाँ देखो दिखाई देता हूँ पहले मैं प्रिंट, देखो ये क्या आया, पाइथन पूरा का पूरा आ गया। तो कैसे माना इसने कि 0 इंडेक्स से उठाना है और बाद में मैंने कुछ नहीं ऐड किया, इसका मतलब ये क्या मान रहा है, लास्ट तक लेके जाना है ना, इनको पहले तक कुछ नहीं चाहिए। अब समझ लो मैंने 0 इंडेक्स तो 0 रखा, पर मैंने इसको 3 कर दिया, तो क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स से n-1 तक जाएगा। n-n क्या है, मेरी लेंथ है ना, स्ट्रिंग की लेंथ। तो जैसे समझ लो मैंने 3 डाला तो 3 नहीं लेगा ये, है ना, 2 तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिख रहे हो वो वाला इंडेक्स ऐड नहीं होगा, उससे पहले तक जितने भी है वो सारे ऐड होंगे इसके अंदर। तो 0 से 2 तक की जितनी भी चीज है, जैसे क्या है 0 से 2 तक चेक कर लेते हैं, p, y और t, ये तीनों है 0 से 2 तक ना, तो वो वाली शो हो जाएगी p, y, t, ठीक है। 3 इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब है ना समझ लो कि अपन को पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो ये कोलन डाल दो, सिर्फ स्टार्ट और एंड में कुछ कुछ मत लिखो, कोलन डाल दिया, पाइथन पूरा का पूरा आ गया। अब -1 से लास्ट तक करोगे तो क्या आ गया, ये आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंडेक्स में -1 डाला है, ठीक है। तो ऐसे है, और फिर उसके बाद में क्या है, हाँ इसके अंदर एक और चीज होती है, जैसे समझ लो किसी बाकी सब लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि मतलब अपन रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को, तो ये जो चीज है इसके अंदर है ना, ये भी पॉसिबल है कि रिवर्स अपन कर सकते हैं इंडेक्सिंग से ही। तो यहाँ पे एक कॉलन लगा के फिर आप दूसरा कॉलन भी लगाओ, यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्ट इंडेक्स, इसके बीच में एंड इंडेक्स, और यहाँ पे जो थर्ड जो कॉलन के बाद में चीज आती है ना, वो स्टेप आता है। अब जैसे मान लो मैंने स्टेप इक्वल्स टू 2 लिखा और मेरे को पूरी चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं जैसे प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आया, पाई टी ओ, पाई तो पाई आ गया, फिर उसके बाद में ये यहाँ से एक जंप मारा और यहाँ से टी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक जंप मारा, यहाँ से ओ आ गया, फिर यहाँ से जंप वाला चीज है और आगे कुछ नहीं है, तो इसने एन को प्रिंट नहीं किया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मतलब 1 लिखोगे तो मतलब इसका सेंस क्या है कि है ना, मतलब कोई जंप नहीं मारा, 1 मतलब कोई जंप नहीं मारा, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कि समझ लो यहाँ पे मैंने -1 रख दिया, तो अब कोई बताएगा कि मेरे को क्या होगा इस स्ट्रिंग के साथ। हाँ रोहित मतलब क्लियर कर रहा है वैसे डाउट सारे, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स नहीं देख पा रहा इसलिए। हाँ मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कोई बता सकता है क्या उसको कैसे कर सकते हैं अपन, मतलब ये क्या शो करेगा मेरे को ये रिजल्ट, कोलन कोलन -1, एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट रोहित कोई भी, मतलब इससे क्या होगा, कोलन कोलन -1 से जो मैंने यहाँ पे किया, इससे क्या प्रिंट होने वाला है? It will print the string in reverse order. हाँ सही है, उसी में सही ध्यान पर, हाँ उल्टा प्रिंट होने वाला है इसका, क्योंकि वो पीछे से जंप लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया, तो कितना फास्ट रिवर्स हो गया ना। और यही चीज अपन C++ में करते या सी में करते या CS में करते, तो अपन को बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग, तो पाइथन के अंदर एज सिंपल है, ठीक है, एकदम एकदम इजी है पाइथन के अंदर। फिर उसके बाद में क्या है, अब देखो फटाफट करते हैं अपन मेथड्स कंप्लीट। st इक्वल्स टू समथिंग डाल दिया मैंने, पाइथन ही डाल देता हूँ क्योंकि सेम स्ट्रिंग यूज करेंगे अपन। फिर उसके बाद हम मेथड्स यूज करते हैं। अब देखो int, len और st, ठीक है। तो लेन फंक्शन क्या करता है, बेसिकली लेंथ बता देगा आपको जो स्ट्रिंग की है, तो 6 कैरेक्टर्स है इसके, तो 6 लेंथ हो गई। फिर उसके बाद में अपन यूज करते हैं, अपन एक एक यहीं पे यूज करेंगे लोअर अपर, ठीक है। तो
इसको कैसे, अब यहाँ पे एक चीज पूछनी है मेरे को। देखो एस टी तो एस टी है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कैसे यूज कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने यहाँ पे डॉट क्यों यूज किया है, मतलब डॉट क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे। मैंने पहले तो लेन में तो अंदर डाला था वो एस टी को, और बाद में मतलब यहाँ पे मैं डॉट यूज कर रहा हूँ। डॉट इन द सेंस, डॉट का सेंस क्या है यहाँ पे यूज करने का, एनीवन, किसी को पता है क्या। डॉट क्यों यूज करते हैं अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब अपन डॉट यूज करते हैं, आपको देखा होगा आपने कहीं पे भी, पर डॉट क्यों यूज करते हैं उसका कोई रीजन है क्या, क्यों अपन ने वहाँ पे डॉट यूज किया है, मतलब एस टी डॉट अपर ऐसे फंक्शन को मैंने कॉल किया है, क्यों किया है? मेथड को इंपोर्ट करने के लिए, किसको, मेथड को इंपोर्ट करने के लिए नहीं, ये मतलब कॉल थोड़ा देने थोड़ा के लिए। थोड़ा थोड़ा सही है, पर क्यों डॉट ही क्यों यूज करते हैं इसका रीजन पूछना है मेरे को। अपन मतलब मेथड को डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं करते, या डॉट ही ऐसा क्यों, डॉट का रीजन क्या है वो पूछना है मेरे को। उसका मतलब ऐसे रीजन है कि है ना, डॉट जो ऑपरेटर होता है ना, वो ऑब्जेक्ट किसी को, आप बाद में पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि एक क्लास होती है, क्लास में कुछ मेथड्स होंगे ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उस मेथड को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो मतलब str है ना, मेरी एक क्लास है पाइथन के अंदर, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्ट्रिंग एक पूरी क्लास है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखते हैं मेथड्स, यहाँ पे देखो, मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं, जुपिटर के अंदर आप क्या करोगे, एस टी मतलब स्ट्रिंग डिनोट कर दिया और उसको डॉट दबा के टैब करो, तो आई थिंक आना चाहिए। हाँ देखो आया, आया, मतलब सारे जितने भी मेथड्स हैं ना स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो आपको शो होंगे जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में। आप देखो स्ट्रिंग के कितने सारे मेथड्स हैं, मतलब ये सारे मेथड्स तुम डॉट ऑपरेटर के बाद में कॉल कर सकते हो। ये कहाँ डिफाइन है, ये स्ट्रिंग की क्लास में डिफाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की क्लास में डिफाइन है और उनको कॉल करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, अब मैं सारे कवर नहीं कर सकता यहाँ पे, तो मैंने मेन जो भी मैं यूज करता हूँ उसको कवर करूंगा। जैसे अपर से क्या होगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो अपर में हो जाएगी। सिमिलरली लोअर से क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग है वो लोअर में चल जाए। कहाँ पे यूज होता है ये अपर लोअर, मतलब क्या है इसका सेंस, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब है ना आप मतलब वेब डेवलपमेंट में या कहीं पे भी जाओगे ना, तो देखो ये जो यूआरएल्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये ऊपर यूआरएल्स जो आते हैं, इनको मतलब फिर आपको चेकिंग करने के लिए या फिर कोई भी आइटम को चेक करने के लिए दोनों इक्वल है या नहीं है, उनको आप पहले फिक्स कर देते हो कि भाई ये स्ट्रिंग मेरे पास आई, इसको लोअर कर दूंगा मैं, फिर ही चेक करूंगा इन दोनों को। तो वो चेकिंग, टाइप चेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लोअर अपर, ठीक है। अब किसी में भी कर दो, एक में अपर में कर दो तो दोनों को अपर में करो, लोअर में करो तो दोनों को लोअर में करो। इस डिजिट से क्या होगा कि है ना, ये चेक करेगा कि मेरे इसके अंदर डिजिट है या नहीं, तो ट्रू और फॉल्स आएगा, शायद इससे फॉल्स है ना। और मैं अगर इसको पाइथन से हटा के 1 कर देता हूँ तो ये ट्रू आ जाएगा। तो इस डिजिट समझ आ गया कि क्या करता है, बताता है कि भाई डिजिट है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइंड है, तो फाइंड से सीधा सा ज्वाइन भी है, सॉरी ज्वाइन है। तो ज्वाइन में देखो क्या होता है, ज्वाइन में जैसे बताऊँ यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी यूज, एक बार मैं टपल यूज कर रहा हूँ। टपल आपको बताया था इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अपन आइटम स्टोर करते हैं। जैसे समझ लो कि मैंने है ना जैसे डेवलपर्स 3 स्ट्रिंग लिख दी। ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार यूज होता है और समझ नहीं आता फिर कि ज्वाइन क्या कर रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ज्वाइन कैसे वर्क होता है। जैसे समझ लो कि मैंने एक ट्यूपल बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये जो 3 कीवर्ड जो मैंने लिखे हैं, जो 3 ये स्ट्रिंग्स लिखे ट्यूपल के अंदर, उनको ज्वाइन करना है, मतलब अटैच करना है किसी तीसरी चीज के साथ, मतलब
किसी अटैचमेंट के साथ ज्वाइन करना है, तो मैं समझ लो कि मैंने एक अटैचमेंट डाला, समझ लो कि ये $साइन डाला। अब मैं इस स्ट्रिंग पे डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा और फिर ज्वाइन यूज करूंगा, है ना, और इस ज्वाइन के अंदर मैं ये टी डाल दूंगा, मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो कैसा है। डेवलपर्स के बाद में ये है शायद, मतलब डॉलर आया, फिर हंट के बाद में डॉलर, और फिर ये 2021, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइंड है, शायद फाइंड यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का मतलब कुछ भी फाइंड करने के लिए कि भाई उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है। जैसे मैं टी लिख देता हूँ वापस, इक्वल्स टू और मेरे को क्या करना है, st डॉट फाइंड क्या करना है मेरे को, समझ लो टी की इंडेक्स पता करनी है, टी फर्स्ट टाइम कहाँ से आया है, तो टी आया है 2 पे, तो 0 1 2, टी आया 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद में काउंट क्या है, काउंट बेसिकली काउंट करेगा कि इस स्ट्रिंग में ये करेक्टर कितनी बार आया है। तो जैसे समझ लो टी मैंने 2 बार ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसको ऐड नहीं करके और काउंट यूज कर लेता हूँ, तो 3 बार करो यार, क्योंकि पहले से 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब 3 आना चाहिए, तो 3 आ गया, ठीक है। तो काउंट ही होता है। अब स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट कब यूज करोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, तब है ना आप इनपुट लोगे बाय डिफॉल्ट, तो आपको पहले स्प्लिट करना है और फिर है ना लिस्ट में रखना है, फिर उसको अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन करना है, तो ऐसा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में जो मतलब स्प्लिट में बताता हूँ कैसे यूज करना है, कि जैसे समझ लो कि मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब ये st है ना, इसके ऊपर मैं क्या कॉल करता हूँ, स्प्लिट मेथड यूज करता हूँ, स्प्लिट, ठीक है। तो अब देखना क्या आता है, ये देखो एरे आ गई मेरे पास, है ना, एरे मतलब लिस्ट आ गई, है ना। तो इस लिस्ट आ गई ना, तो स्प्लिट क्या करेगा, जो भी आपका सेपरेटर आप इसके अंदर डालोगे ना, ये जो ब्रेक इसके अंदर पैरेंथेसिस है, मतलब यहाँ पे कुछ जा सकता है, तो वो जो सेपरेटर है उससे डिफाइन होगा कि ये स्ट्रिंग्स कैसे सेपरेट है। बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस रहता है, तो ये स्पेस मान के चल रहा है कि स्पेस है कैरेक्टर्स के बीच में, और फिर है ना वो उसको लिस्ट कन्वर्ट कर दे। अब जैसे हैकररैंक पे आप जाओगे ना, हैकररैंक पे या कोडशेफ पे कहीं पे भी, तो फिर वो इनपुट बाय डिफॉल्ट आते हैं और उनको आपको स्टोर करना पड़ता है लिस्ट के अंदर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से अनपैकिंग करोगे इनकी वेरिएबल्स की, अनपैकिंग मतलब असाइनमेंट करोगे वेरिएबल्स को, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड्स, लगभग सारे हो गए। ये थोड़ा सा एक बच गया है, स्प्लिट हो गया। हाँ स्ट्रिप क्या करेगा, देखो ये डेवलपर्स हंट के बीच में जो स्पेसेस है ना ये वाले, और थोड़ा मैं और थोड़ा स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, तो बीच वाले स्पेसेस से इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, ये वाले स्पेसेस है ना, अब जैसे समझ लो ये वाले स्पेसेस को हटा देगा, तो देखना कैसे होता है। तो बीच वाले स्पेसेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर ये वाले स्पेसेस इसने हटा दिए। ये कब काम आता है, मतलब जब आप इनपुट लोगे ना, तो समझ लो कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, पर है ना जो यूजर है वो थोड़ा सा ऐसे सही नहीं यूज कर रहा, उसने बहुत सारे स्पेसेस डाल के और एकदम बाद में यूज किए, बाद में जो आपने इनपुट मांगा वो दिया है, तो आप क्या करो, स्ट्रिप फंक्शन यूज कर लो, स्ट्रिप करो और फिर उसको इनपुट ले लो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो उसने टाइप की, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट फॉर्मेटिंग है। प्रिंट फॉर्मेटिंग कब यूज करते हैं, जैसे समझ लो कोई वेरिएबल है, ऊपर आपने कोई वेरिएबल असाइन किया, फिर उसकी वैल्यू आपको स्ट्रिंग के बीच में यूज करनी है। जैसे समझ लो कि मेरे को नेम है और मेरा नेम क्या है, ठीक है, ऐसे यूज कर दिया मैंने नेम, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग। अब ये देखो प्रिंट फॉर्मेटिंग दो तरीके से होती है पाइथन की, तो होती है एफ स्ट्रिंग की यूज करके, तो प्रिंट फंक्शन पहले मैं यूज कर लेता हूँ, प्रिंट, और ये मैंने एफ स्ट्रिंग, ऐसे देखो ये ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, एफ और फिर उसके बाद में डबल कोट्स। अब देखो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग डालनी है डाल दो,
है ना। अब समझ लो वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, तो क्या करना है कि ब्रेसेस यूज करो, सॉरी ब्रेसेस, है ना, ब्रेसेस यूज करो और जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो अब जैसे मैं प्रिंट करूंगा ना, तो माइन आई एम हर्षद आए, ठीक है। ऐसे ही अपन यूज करते हैं स्ट्रिंग में, मतलब जहाँ पे भी आपको वेरिएबल डालना है वहाँ पे आप हर्षद हाँ हर्षद रिप्लेस रह गया ऊपर। ओके ओके, सॉरी सॉरी, रिप्लेस रह गया यहाँ पे, थैंक यू। हाँ, रिप्लेस में क्या होता है कि हाँ मैं वापस से हटा देता हूँ। हाँ देखो, रिप्लेस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है ना। तो इम्यूटेबल है, पर पाइथन ने एक अपन को फंक्शन भी दिया है कि आप है ना अगर चाहो ना तो चेंज भी कर सकते हो। तो वो पीछे से कैसे रन हो रहा है वो अपन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर अपन रिप्लेस यूज कर लेते हैं, कि मतलब यूज करते भी और करेंगे भी। तो ये रिप्लेस st.replace, और समझ लो मेरे को 2021 को हटा के, तो मैं यहाँ पे दो चीजें आएंगी, जिसको चेंज करना है वो, और जिससे चेंज करना है वो, कोमा के बाद। तो समझ लो मैं इसको 2022 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो क्या हो गया, चेंज हो गई ना स्ट्रिंग 2021 से 2022। तो स्ट्रिंग में कुछ भी रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस यूज करना है, ठीक है। ओके, तो और कुछ नहीं छोड़ा ना, हाँ नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में एफ स्ट्रिंग मैंने बता दिया, एफ स्ट्रिंग में हमेशा ध्यान रखना, पहले एफ आएगा, फिर डबल कोट्स आएंगे, फिर जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, फिर ब्रेसेस आएंगे, जो भी वेरिएबल करना है वो ब्रेसेस के अंदर। अब ये डॉट फॉर्मेट मेथड है ना, ये यूज होता, मतलब यूज करते हैं लोग, पर है ना अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एफ स्ट्रिंग थोड़ी एडवांस है। डॉट फॉर्मेट में क्या होता है कि जैसे समझ लो कि एस टी है मेरा, मतलब नेम लिख दूँ मैं इधर, नेम लिख दूँ मैं इधर कि भाई जो भी है, ठीक है। अब मेरे को रिजल्ट करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू प्रिंट करना है, और क्या करना है मेरे को, कि जैसे ये स्ट्रिंग है आई एंड, है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप ब्रेसेस डालोगे, इसका बता रहा हूँ किसका, डॉट फॉर्मेट मेथड का। तो आई एम दिए, ब्रेसेस डाल दिए, अब मेरे को यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर अब लगाना है ना। तो ये डॉट ऑपरेटर लगाया, अब ये फॉर्मेट यू डालना है यहाँ पे, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट लिख के, और फॉर्मेट लिख के क्या करूँगा मैं, जो वेरिएबल का नाम मैंने ऊपर यूज़ किया ना वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसमें एक्चुअल में कर क्या रहा है कि जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे बीच में यूज़ किया ना, उसको उठा के इस ब्रेस में डाल देगा, ठीक है। तो प्रिंट करके देख लेते हैं, तो ये आ गया ऐसे। एक तो तरीका ये भी होता है, और दूसरा इसके अंदर बहुत सारे हैं, देखो रूल इसमें थोड़ा डिफरेंट भी है, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, एंड इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं आई एम, और कैसे कर देते हैं। तो इसके अंदर देखो ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। फिर एक दूसरा तरीका कैसा है कि हाँ, इसमें अपन 0 और 1 डाल दिए, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को लिख सकता हूँ। ये देखो 0 पे क्या आया, मेरा नाम, और 1 पे क्या आया, डेवलपर, ठीक है। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग, जैसे अपन इंडेक्सिंग करते हैं ना वैसे, आई एम डेवलपर एंड ये चेंज हो गया। एक और मतलब होता है इसके अंदर शायद, हाँ एक और होता है, देखो कैसे, कि मेरे को ये वाली चीज़ यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी मेरे को, और मेरे को यहाँ करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम, यहाँ पे डाल दो, क्या आया, हाँ, तो कोमा का वो थोड़ा मिस्टेक था,
इसको सही कर देता हूँ और हाँ, तो ये आ गया ना, मतलब आई एम हर्षद एंड आई एम डेवलपर। तो ये प्रिंट फॉर्मेटिंग थी, तो ये बहुत बार अपन यूज़ करते हैं जब ना हम मतलब कभी भी वेरिएबल्स को अपन को यूज़ करना रहता है। तो दैट इज़ ऑल, ये आज का सेशन यही है। सो विकास, टुवर्ड्स यू। हाँ, कोई किसी को भी डाउट है ना तो अभी क्लियर कर लो 5 मिनट मतलब। और बाकी एएमए सेशन है मतलब 4th डे, तो वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू टेक तो। ओके फाइन, बाय बाय। हमारे लेक्चर्स रहते हैं 10 सुबह से 10 बजे से 3 बजे तक। हाँ, हाँ, हम देखते हैं फिर। डिवीजन अलग है पर सबके मॉर्निंग्स में 10 हो से लेते सकते हैं। हैं, मॉर्निंग्स में 10 से पहले 8-9 बजे। थ्री बजे के बाद भी हो सकते हैं। 10 से 2 बजे 3 बजे तक रहते हैं। हाँ, ग्रुप पे डिस्कस करो और जैसा आप डिसाइड करते हो मतलब वैसा कर लेंगे, कोई इशू नहीं। लेक्चर का कोई फिक्स नहीं है, कभी भी लेते हैं, उनको जब कंफर्टेबल होता वही तभी लेक्चर लेते हैं। हाँ, वो भी मैटर करता है ना कि भाई मतलब लेक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा थोड़ा आपको भी। तो हम रखते हैं टाइम, चेंज करते हैं या फिर देखो आप, मेजोरिटी स्टूडेंट जैसे सेट होंगे वैसे ही रखेंगे हम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।